in English grammar plays an important role while we communicate or write any of the thing. Hello everyone, welcome back to my channel Indian Spotlight. Today in this video I am going to talk about the use of tense, and in future I will also continue the same in tense wise. If you have not subscribed the channel yet, please do it and press the bell icon to receive future notification. Stay connected with the channel. If we talk about the definition of tense, then it is like tense denotes the time of action they show when the work is done. जब हमें कोई काम होने का समय व्यक्त करने की आवश्यकता होता है तो टेंस का प्रयोग किया जाता है. इन इंग्लिश देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड लास्ट वन दैट इज फ्यूचर टेंस भविष्यत काल. To give more flexibility, each of these 3 tenses can be classified into 4 parts: simple or indefinite form, number 2 progressive or continuous form, number 3 perfect form, and the last one that is perfect progressive or perfect continuous form. कुल मिलाकर टेंस की संख्या 12 है. तो इस तरह से सभी टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में. प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस. हाउ टू आइडेंटिफाई? वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य. द सेंटेंसेस दैट टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज subject plus V1 plus yes or yes plus object. We have to remember that this yes or yes with the V1 form will be added when the subject is in third person singular number. For example, he, she, it, Ram, cat, pen, etc. देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में. जैसे कि रमेश रीड्स बुक्स, रमेश पुस्तकें पढ़ता है. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट. अभी बात कर लेते हैं प्रेजेंट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में. नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स नकारात्मक सोच. द सेंटेंसेस दैट टॉक्स अबाउट द नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट plus V1 plus object. Does is used after the singular subject like he, she, it, Ram, etc. Similarly, on the opposite side, do is used after I and plural subjects like we, you, they, books, etc. Examples होगा: I do not learn my lesson. They do not play hockey. He does not write a letter. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. The structure of interrogative sentence is do or does plus subject plus not. Not will be used in the case of negative interrogative sentence plus V1 plus object and at last a question mark. आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को. Does he read a book? क्या वो किताब पढ़ता है? क्या मैं तुम्हें एक कलम दे सकता हूँ? Do I give you a pen? Similarly, if we find out that irrespective of do or does, we can also make an interrogative sentence by using WH words. Do or does के बिना ही आप interrogative sentence फॉर्म कर सकते हो WH वर्ड का इस्तेमाल करके. उसके लिए उसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस do or does प्लस subject प्लस not in case of negative प्लस V1 प्लस object प्लस question mark. Always keep in mind that putting a question mark is compulsory in any interrogative sentences. तो इसका एग्जाम्पल रहेगा does, why does she come here, which book do you want. Then present continuous tense. Present continuous tense is used to express an action taking place at the time of speaking. This continuous form is always known as progressive form also. हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे है आता है. अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट.
As you all are knowing where to use am is are after the subjects, so I am not going in details for explanation. Affirmative sentence में इसका एग्जाम्पल होगा He is reading a book, she is writing a letter, I am playing. In negative sentence, the structure of continuous form is subject plus am is are plus not plus V1 plus ing plus object. तो याद रखने वाला बात यही है कि not का यूज़ होता है बी वर्ब जैसे कि am is are के बाद ही. एग्जाम्पल्स होगा He is not reading a book, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, वो पत्र नहीं लिख रही है. She is not writing a letter, I am not playing, मैं खेल नहीं रहा हूँ. इंट्रोगेटिव फॉर्म. इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस द स्ट्रक्चर इज am is are plus is plus not. Again not will come in the case of negative interrogative sentence plus V1 plus ing plus object and at last a question mark. एग्जाम्पल्स होगा आर दे रीडिंग अ बुक. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जैसे कि हम जानते हैं WH वर्ड्स को देकर भी फॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली इफ वी मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द WH वर्ड देन द स्ट्रक्चर विल बी अबाउट द सेम जस्ट अबव वन, ओनली WH वर्ड विल कम इन द प्लेस ऑफ बी वर्ब. जैसे कि वाई आर वी नॉट रीडिंग अ बुक. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to show an action that started in the past and has now finished. कैसे पहचानेंगे? हिंदी के वाक्य में अंत में चुका है, गया है या है आता है. तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. हम सभी जानते हैं कहाँ पर हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है. हैज़ इज़ यूज्ड आफ्टर द सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, she, it, Rohit, etc. Similarly, have is used after first person singular and plural number and in all the plural subjects. जैसे कि एग्जाम्पल होगा We have eaten the food. हम खाना खा चुके हैं. वो पत्र लिख चुकी है. She has written a letter. मैं खेल चुका हूँ. I have played. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट plus V3 plus object, so that not is coming after the subject and has or have. जैसे कि he has not learnt any lesson, उसने कोई पाठ याद नहीं किया है. और वो वहाँ नहीं गया है, he has not gone there. हम खाना नहीं खा चुके हैं, we have not eaten the food. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ और हैव प्लस इज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. जैसे कि हैज़ शी स्लेप्ट. इंट्रोगेटिव फॉर्म में WH वर्ड को देकर WH वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस इज प्लस नॉट इन द केस ऑफ नेगेटिव परफेक्ट टेंस प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसे कि वाई हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क. वो क्यों अपना काम कर चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to indicate any action that was started in the past and is going on at present situation. कोई काम पहले शुरू किया होगा और अभी भी चल रहा है, ऐसे टाइम को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. जैसे कि We have been reading in this college for 5 years. तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. हम पहले ही सिंस और फॉर के बारे में बता चुके हैं जो प्रीपोजिशन वाले वीडियोज़ पर. तो इसका एग्जाम्पल होगा ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं पहले हैज़ और हैव लगाकर और WH वर्ड को लगाकर भी. जैसे कि हैज़ और हैव प्लस इज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. जैसे कि हैज़ ही बीन कमिंग हेयर सिंस मंडे. क्या वो सोमवार को इधर आ रहा है.
Similarly, interrogative sentence with WH word, the structure will be WH word plus has or have plus is plus been plus before plus object plus since for plus time plus क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वाई हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मार्च, वो क्यों मार्च से पढ़ रहा है।